Jai Hanuman. We are continuing our blog. That was I was reading the NCRT book, Social Science of Class 6. Like I was on the second unit, Government. I'm starting it. All the best. The morning they start with R.K. Lakshman. You must have heard his name, और जो 90 के स्टूडेंट हैं उन्होंने सुना होगा. And tell you with the very good music. There was a music ta na 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 ta na 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 Malgudi Days, written by R.K. Lakshman. He wrote one very good quotation here. A cartoonist business is a democracy is to exercise is the right to criticize, ridicule, find faults with political leaders through cartoons. And here explain a lot of things. You can go through it. It's awesome. बचपन के दिन याद दिला दिए. So we are starting with the government part, unit 2. What is government? You must have heard the word government mentioned this several times. In this chapter you learn about the government is important role in our life, what to do with the government, how they decide what they do, what different kind of things such as monarchies, democracies, governments sought to protect right of unorganized workers, detailed plans, say government fix. Every country needs a government to make a decision and get right thing. Then this can be a decision about where to build the roads and schools, and how to reduce the price of onion when they get too expensive, or way to increase the supply of electricity. The government also take action on many social issues. For example, there are several programs that help the poor for things such as running post and railway services.
During your preparation, you'll go through one common word, that is democracy, monarchy, anarchy, secular, liberal. अभी हम मोनार्की के बारे में बता दें। इसका मतलब होता है वो कंट्री जहाँ पर राजा या रानी रूल करता है, जहाँ पर राजा रानी ही सब कुछ देखभाल करता है, उसे मोनार्की कहते हैं। एंड मोनार्की का एक मोनार्की द किंग और द क्वीन क्वीन के लिए एक फ़ायदा बस ये रहता है कि उनको किसी को जवाब नहीं देना होता। दे कैन टेक एनी डिसीजन फॉर द पीपल, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इज थिंग लाइक वी इलेक्ट द पर्सन बाय द वोट्स, बाय द इलेक्शन, ठीक है। You need to answer each and every questions of the people. बस यही एक डिफरेंस होता है मोनार्की में। And there are lot of difference, but at present this will work out for you. अभी नहीं, तू अभी पढ़ रहा है अभी ना। मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी को बुलाओ। अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है बीच में यहाँ एज अ नोट। अपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा और नहीं भी सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक आया है वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये कुछ नहीं था, बस यहाँ पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर वुमेन्स ने वोट देने के राइट को पाने के लिए स्ट्रगल एंड मूवमेंट किए। इसी को वुमेन सफरेज मूवमेंट बोला गया है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट टू गेट दिस पावर। Do you know, in 1920, American women got the right to vote, and in 1928, the UK women got right to vote. देख लो, डेवलप कंट्रीज़ के भी ऐसे हाल थे। 100 साल पहले ही वुमेन्स को
वोट करने की परमिशन दी है? एक और पॉइंट आया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये नाम बहुत सुना होगा आपने, बट आई नो बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। मैं बहुत शॉर्ट एंड ईजी वे में आपको बता देता हूँ। दिस मीन all the adults in the country are allowed to vote. Universal adult franchisee. Universal adult franchise. I hope you like it. ऐसे फैक्ट्स मिलते रहेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई नो मैं बहुत ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे लोग मोटिवेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हर इंसान का एक अपना परसेप्शन है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम नॉट वेल, सो एक रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड डू गिव योर सजेशन इफ देयर इज। डू यू नो दैट इंडिया में भी ऐसा ही होता था। यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने की परमिशन थी, वुमेंस को परमिशन नहीं थी। सिर्फ उन लोगों को परमिशन थी जो एजुकेटेड थे, वेल्दी सोसाइटी से थे, पढ़े लिखे थे, दे वर कंसीडर टू गिव वोट। एंड कुछ माइनॉरिटीज़ ग्रुप को भी एड ऑन उस समय किया गया था, जो कि एक मेजॉरिटी रोल प्ले करती थी विनिंग द इलेक्शन। एंड जब ये गांधी जी को पता चला ना, तो दे सॉ द अनफेयर मीन ऑफ वोटिंग, and there and then he decided that all adults are allowed to vote. तभी ये नाम पड़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। So you can say that this name was given by the Gandhi ji after seeing the unfair election in India. आप पढ़ते रहिए रेगुलर, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आई एम श्योर जैसे मेरे को कॉन्फिडेंट आता जा रहा है, अच्छा लगने लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हो सकता है 1 साल की जगह आप 1.5 साल लो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे डेफिनेटली इट विल वर्क आउट। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? द की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, and this will be including people participation, resolution of conflict, and equality and justice. South Africa is the country that has people of several races. The black people who live in the South Africa, white who came from the settle, and Indians who came as a laborers and traders. Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg,
Johannesburg was helping her mother to clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspapers articles. There were so many pictures of young around the 15 years of age. Active dictation. डू यू नो अफ्रीका में बहुत सारे रेसेस के लोग होते हैं. द ब्लैक पीपल, द वाइट पीपल. ब्लैक पीपल जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं. वाइट पीपल में इंक्लूड थे द ट्रेडर्स, द इंडियंस, द लेबर जो बाहर से कंट्री आके सेटल हुए अफ्रीका में. एंड यहाँ पर रेसिस की वजह से, रेसिज्म की वजह से पार्टी सेपरेट हो रखी थी एंड इनको नाम दिया गया था अपार्थाइड. Apartheid were the people who separated the people on the basis of their color and race. दोनों का मतलब ही एक है. I'm just using it. The African people were divided into white, black, Indians and color races. एंड सबसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा गोरे लोग काले लोगों को अगर काला बोल देते हैं तो वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर केस हो जाता है. दिस वॉज द रूल क्योंकि अफ्रीकन्स ऑफेंड हो गए होने लगे थे एक टाइम के बाद. एंड आपको वो ये बता दूं अपार्थाइड ने ऐसा कर रखा था कि दे डिडंट अलाउ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस टू मीट ईच अदर. ब्लैक कैन नॉट मीट द इंडियंस, ब्लैक कैन नॉट मीट द वाइट्स. सोचो. मतलब वहाँ पर रेसेस अफ्रीका में इतना ज़्यादा हो गया था कि अगर कोई बीमार पड़ता था तो सेपरेट एम्बुलेंस थी ब्लैक एंड वाइट्स के लिए. बस स्टॉप अलग अलग थे, ट्रेन अलग अलग थी, इवन बसेस अलग अलग थी कि इसमें ब्लैक जाएंगे इसमें वाइट जाएंगे. मतलब हम इंडिया को बोलते हैं कि यहाँ पर कास्ट, क्रीड, कलर, वेल, पोजीशन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. भाई यहाँ तो हो रहा है हमारे यहाँ. अगर कोई बीमार पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है, गरीब हो, कोई भी जाति का हो, कैसा भी इंसान हो, हम तुरंत हेल्प करते हैं. हम कभी ये नहीं सोचते हैं. यही एक सनातन धर्म की क्वालिटी है या हर एक इंडियन की क्वालिटी है. देखिए इंडिया में जितने भी लोग हैं सबका धर्म सनातन है और सनातन से पुराना कोई धर्म है नहीं. मैं यहाँ कोई रिलीजियस फैक्ट या फिगर्स या किसी पर्टिकुलर चीज़ को फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक बात बता रहा हूँ आपको. सो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा. अब आपको पता है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हु रेज अ मूवमेंट अगेंस्ट द अपार्थाइड, उनके लीडर कौन थे? द फेमस पर्सन ऑफ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला. एंड आपको एक बात बता दूं, नेल्सन मंडेला वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गांधी जी. गांधी जी उनसे राय लेते थे एंड
बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत सारी बुक्स में ये सुनने को मिलेगा दैट गांधी जी टू द डिस्कशन फ्रॉम और टू the valuable things from the Nelson Mandela, and the same goes with the Nelson Mandela. They both were very good friend. वो डिस्कस करते थे अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते थे by the letters, by the telegram, and there are so many resources available online. You can go through it. So, do you know South Africa became a democratic country in year 1994, and the major role played was by the Nelson Mandela. This can be a GK question for the person those who are preparing for the one word substitution. In India, हर 5 साल में इलेक्शन होता है. कीप दैट इन माइंड. एंड ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता है. उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं दैट विल बी गोइंग. वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे. एंड देखिए ये हम एक तरीके से पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं क्योंकि एक क्लास तक सोशल साइंस चलती है. उसके बाद ये सोशल साइंस ही डिवाइड हो जाती है अलग अलग कल्चर में. हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिक्स, जहाँ पर हम सेपरेट एंड डीप स्टडी करते हैं. तो कंफ्यूज मत होइएगा. एक तरीके से हम ओवरऑल मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं.
एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंसिडेंट आया है, कावेरी डिस्प्यूट। व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 7, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गया था। बेसिकली बद्रीनाथ गया था, केदारनाथ नहीं जा पाया था ड्यू टू सम रीजंस। तो हमारे साथ एक धर्म गुरु गए थे एंड दे टोल्ड मी, लाइक उनसे बात हुई, दे वर द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, he was a part of our journey and he was very good at that time. He told कि पानी को लेके हमारी स्टेट में डिस्प्यूट चला, ही वॉज फ्रॉम द सदर्न रीजन एंड वो डिस्प्यूट का मैं नाम बता देता हूँ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो 30 सालों से चल रहा है। ठीक है, इस डिस्प्यूट में बेसिकली है क्या कि तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में लड़ाई चल रही है पानी को लेके, क्योंकि वहाँ पर एक ही सोर्स है जो है कावेरी नदी, दक्षिण गंगा भी जिसे कहा जाता है। ये जोग्राफी का पार्ट है, यूल गो थ्रू इट, यूल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। मेरे को भी कोई ऊपर से मैं सीख के नहीं हूँ, मैंने नीचे ही बैठ के पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर कृष्णा सागर डैम है कर्नाटका में और मित्तूर डैम है तमिलनाडु में। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है पानी को लेके। देखिए, पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, किसी की भी लड़ाई हो, ये लड़ाई तो खैर पॉलिटिकल है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर कर्नाटका यूज़ करेगा तो कावेरी नदी का पानी ख़त्म हो जाएगा, उन दूसरों को लगता है तमिलनाडु यूज़ करेगा तो कर्नाटका को पानी कहाँ से मिलेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। नदी में इतना पानी है जो बरसों से बह रही है, आज तक कोई नहीं सुखा पाया, वो कैसे सूखेगी। और ये डिस्प्यूट 30 सालों से चल रहा है एंड 30 साल से दोनों ही लोग पानी यूज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे। 30 के आने वाले 30,000 साल तक भी, जब तक पानी बहेगा, पानी रहेगा, लोग पानी यूज़ करते रहेंगे। लेकिन लोगों की सोच ऐसी हो गई है, लाइक पॉलिटिकल सोच, दीज आर दी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। यहाँ आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पानी चाहिए भाई। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग होशियार ना हो। डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में यही एक फ़र्क होता है। हम डेवलपिंग इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच अभी तक डेवलप नहीं हुई है। जिस दिन हमारी सोच डेवलप हो जाएगी, हम दूसरों से पहले, गवर्नमेंट से पहले खुद सोचने लगेंगे, तो थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। सो थिंक वाइजली, टेक प्रॉपर डिसीजन बिफोर यू डू एनीथिंग। नो वन इज़ वॉचिंग, you need to improve yourself and improve yourself. That is more important. Keep that in mind. None of the government is responsible. They make things, they decide things, you need to implement that thing, that law. You will be the part of the development. Government will only play a role of a catalyst, but we all together make our country a developed nation. So keep that in mind. Go back to study. तो कौन लेके था इस both things are on the same level. And the सबसे बेस्ट पार्ट पता है कि डिस्प्यूट का एक मेन रीज़न क्या है? ये दोनों ही डैम, मिट्टूर डैम और राजा सागर डैम, कावेरी ही नदी पे है। एक अगर रोक लेता है तो दूसरे को पानी मिलना बंद हो जाता है, दूसरा रोक लेता है तो पहले को पानी मिलना बंद हो जाता है। तो ये डिस्प्यूट एक्चुअली, क्योंकि एक अपस्ट्रीम पे एक डाउन स्ट्रीम पे है, जो अपस्ट्रीम पे होगा उसको भाई फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, जो डाउन स्ट्रीम पे होगा उसको फ्लो ऑफ वाटर नहीं चाहिए, पानी ऊपर से बह के नीचे ही आएगा। एंड ये बहुत सिंपल सा, मतलब लाइक दिस कैन बी सॉल्व बाय फिजिक्स, दिस कैन बी सॉल्व बाय जियोलॉजिस्ट। व्हाई पॉलिटिकल पीपल आर टेकिंग पार्ट इन इट, आई डोंट नो। सोचो, ऊपर से पानी बहेगा, नीचे ही जाएगा, तो भाई पहले ऊपर वाला यूज़ कर लो, पानी बह के आएगा, नीचे वाला यूज़ कर दो। तुम कितना पानी स्टोर करोगे? स्टोर करके भाई क्या करना है? मछलियाँ, उसमें मछलियों का फार्मिंग करना है क्या यार? क्या करना है? आसपास के गांव डुबोने हैं? इतना फ्लो रखो ना, तुम्हारा भी काम चलता रहे, दूसरे का भी काम चलता रहे भाई। वी ऑल लिव इन द सेम प्लेस, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। Why to put a political issue in Kaveri dispute? तो प्लीज़ गो थ्रू इट, समझो। अगर कोई सरकारी मुलाजिम देख रहा तो समझो भाई, हमें समझ में आ रहा है यूपी में बैठ के, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है।
आपको बहुत सारे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे। नाम क्या, वर्ड सुनने को मिलेंगे, इक्वालिटी, जस्टिस। तो इन सब पे फोकस रहिएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको यूज़ करने पड़ेंगे और बहुत जगह आपको एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे। वन वर्ड डिसाइड, वन वर्ड कैन मेक अ कंप्लीट ऐसे। सो कीप दैट इन माइंड एंड कीप्स, थोड़ा सा पॉइंट्स सोचते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि फ्रॉम देयर इन दिस बेसिक रीडिंग you'll get a so many points that will help you out in the essay writing in the mains basically, and definitely prelims में भी फ़ायदा आता है भाई। And equality and justice are inseparable. Keep that in mind. Untouchability has been banned by the Indian law. I know you can go through it. You cannot call any lower caste people by their people, like जैसे पहले पुराने लोग बुलाते थे। आप ऐसे नहीं बुला सकते, तो बुलाना भी नहीं चाहिए। अगर हम ये समझ जाए ना, सब इंसान है, जात क्या है भाई, किसने ठप्पा लगाया, पीके मूवी से यही चीज़ सीखी है, किसने ठप्पा लगाया, सब इंसान ही बन के पैदा हुए हैं, ऊपर से कोई मज़हब लेके नहीं आता, इंसान बन जाओ। अगर मैं मेरे पास अगर पावर होती ना, देर विल बी वन थिंग, कोई रिलीजियस नहीं, ऑल आर इक्वल, एवरीवन आर ह्यूमन बीइंग, बस ओनली डिफरेंस इज सम आर गुड सम आर बैड, डिफरेंस ख़त्म। गुड ह्यूमन बीइंग, बैड ह्यूमन बीइंग्स, ख़त्म। कोई ड्रामा नहीं। हिंदू में 15 जाति, मुस्लिम 15, मुस्लिम में 4 जाति, क्रिश्चियनिटी उसमें अलग, सिख उसमें अलग, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। भाई क्यों पागल हो गए हो? कोविड ने कुछ समझाया नहीं लग रहा अभी तक? हाँ, सीखना है तो हर रिलीजियस से कुछ सीखो, हर रिलीजियस कुछ अच्छा सिखाता है। अनपढ़ो, पढ़ना शुरू करोगे ना तो समझ में आएगा। सुनने वाले हमेशा गलती करते हैं, पढ़ने वाले कभी गलती नहीं करते। ठीक है, दिमाग लगाओ, कंधों के ऊपर सर जो दिया है सोचने के लिए दिया है, दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू करोगे तो चेंजेस शुरू हो जाएंगे जीवन में। ज्ञान बहुत हो गया। चलिए, यूनिट 3 पे आ गए, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो योर लोकल गवर्नमेंट, यू शुड नो योर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि भाई जहाँ रहते हो वहाँ का पता नहीं है ना, दुनिया का पता रखते हो। पता है अमेरिका में क्या हो गया, पता है यूएसए में क्या हो गया, पता है लंदन में क्या हो गया। अबे तुमको पता है तुम्हारे एरिया में क्या हो गया? आईएएस ऑफिसर बनना है तो अपने आसपास की जानकारियाँ रखा करो, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट द थिंग्स। आदि पॉलिटिक्स, आदि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तुम्हें अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी जगह ही समझ में आ जाएगी, हाउ थिंग्स वर्क। पंचायती राज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत अच्छा सिस्टम है, एंड दिस वर्क लाइक यहाँ पर लगता है कि यहाँ कुछ काम होता है, दो पॉलिटिकली नहीं, जो सीनियर पीपल होते हैं बहुत कुछ करते हैं, बट यहाँ पर भी अब वही करप्शन स्टार्ट हो गया है। कोई प्रधान बन गया तो बस सिर्फ प्रधान ही बनेगा, बाकी गांव बने या ना बने। प्रधान जी आ रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो पे, प्रधान लिखवा के। What happened after people elect their representative? How are decision made? Let's look at how this take place in the rural areas.
The Gram Sabha, which meeting where the people directly participate and seek answer from the elected representative. It's a special day, even everyone rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. Gram Sabha. A Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President, who is also called Sarpanch, and the members of the Panchayat are Panch. देखो नाम में ही सारी डिटेल, पंचायत, पंच मीन्स पांच, और इसको जो लीड करता है उसे सरपंच। इन पांचों के ऊपर जो बैठा होता है उसे बोलते हैं सरपंच। इज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत। हम लोगों के यहाँ बोला जाता है पंचायत मत करो। 4-5 लोगों से ज़्यादा देखा ना तो लोगों को लगता है फालतू का डिस्कशन हो रहा है। दे डोंट नो दे आर यूजिंग अ पॉलिटिकल वर्ड। हम लोगों को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता है क्या है। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, पंजाबी, हम बोल देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है ना। पंचायत, आज मुझे मतलब बेसिक मुझे पता चला। पंचायत याद नहीं करना भाई, समझना है। इतना कुछ याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। मेमोरी कार्ड थोड़ी है। यूज योर ब्रेन, नॉट योर मेमोरी। पंचायत वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव विच इज नोन एज वार्ड मेंबर। ये पंचायत में भी होता है, अर्बन इलेक्शंस में भी होता है। हर पूरा शहर एक वार्ड के टाइप, मतलब एरिया वाइज डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर गवर्नेंस आ सके। एक अकेला इंसान 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों को नहीं हैंडल कर सकता जगह जगह जाके, तो वो सब डिवीज़न हो जाता है। एक प्रॉपर हायरार्की होता है। प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स के नीचे मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर के नीचे सीएम्स होंगे, सीएम्स के नीचे आपके फर्दर डिवीज़न होते जाएंगे। ऐसे होते होते वार्ड तक आता है। वार्ड इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न। हर एक वार्ड मेंबर्स के अलग इलेक्शन होते हैं। हर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, इलेक्शंस होते हैं और उसमें से इलेक्ट किया जाता है। सेम लाइक एवरी प्रोसीजर ऑफ द लाइक द सेम इन द इलेक्शन। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया तो बता दिया। Second from the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected by the Gram Panchayat has the secretary, who is also the secretary of the Gram Panchayat. This is a person, not elected person, but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling meeting of the Gram Panchayat and the Gram Panchayat, keeping the record of the proceeding. The villagers call Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. That has gone.
I'll continue this like after 15 minutes. I need to take my dog for the walk. वो परेशान हो रही है and मैं बहुत देर से देखा हूँ, like she is waiting for me. I'll be back in 15 minutes. We'll continue this video from where I paused. I'm back. Let's go back to the story. Oh. क्या हुआ मम्मा? माँ?
There are more than 6 lakh villages in India. Incredible. मम्मा दूध ले लेना। जल्दी से आ रहे भैया। डू यू नो कि हर जगह पटवारी को अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं उसे लेखपाल बोला जाता है, कहीं उसे पटवारी बोला जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे
वर्ड्स या बहुत सारे कुछ ऐसे नाम होंगे जिनका मतलब एक होगा, बस नाम अलग अलग होंगे जगह के हिसाब से। तो ये याद रखिएगा। अपने यूपी में लेखपाल बोला जाता है, गांव में पटवारी बोला जाता है जो रोड का, वाटर बॉडीज़ का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स रखने। बेसिकली पटवारी का मेन काम है लैंड रिकॉर्ड रखने का, ठीक है। पटवारी का मेन काम होता है टू कीप एन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस। जो भी उसको विलेज असाइन हो, मतलब एक ही विलेज असाइन होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे विलेजेस असाइन होते हैं। और उनका मेन काम होता है जस्ट हेलो हेलो आजान पढ़ रहा हूँ। 11 बजे बोला था ना तुमने। ठीक है। इतने आलू का पराठा बना दे। हाँ माँ। चाय पीने जाए, मुझे भी चाय पीना मन खराब हो रहा था। वो खाना दे दे फिर। पटवारी का एक और काम होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। बेसिकली लैंड से रिलेटेड जो काम होते हैं वो पटवारी करते हैं विलेज में। क्रॉप कैसे ग्रोन हुए, टैक्स कलेक्शन, लैंड से रिलेटेड जो भी काम होगा वो पटवारी करेगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट, पटवारी। एंड रिसेंटली बहुत सारे इसके एग्जाम्स भी निकले हैं। सी ऐसे बनते हैं पटवारी के रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रिक्ट तालुका में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक हायरार्की है। एक डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट नेम और से बुलाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, एरिया, डिवीजन। कहीं तहसील बोला जाता है, कहीं तालुका बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट के ही दूसरे नाम हैं तहसील एंड तालुका। अगर बड़ा है तो तहसील बोला जाएगा, अगर छोटा एरिया है, विलेजेस आ रहे हैं तो उसे तालुका बोला जाएगा। इसको हेड करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे होता है तहसीलदार, दोज हु टेक केयर आफ्टर लाइक टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इससे बहुत सारे तहसीलदार के काम होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, फार्मर्स के लैंड की इंफॉर्मेशन रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल डिस्कस डीप एंड पॉलिटी।
आपको पता है पहले सिर्फ जब लैंड डिस्प्यूट होता था तो सिर्फ घर के लड़के को प्रॉपर्टी में डिवीजन करके दिया जाता था, मतलब शेयर दिया जाता था। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग घर की बहन, बेटी, माँ को भी इक्वल शेयर दिया जाएगा अगर कोई लैंड का डिवीजन होता है या बंटवारा होता है। इस लॉ का नाम है हिंदू सक्सेशन या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। जो भी फादर का लैंड या प्रॉपर्टी होती थी वो सन में डिवीजन होता था, बट नाउ द मदर एंड अ डॉटर कैन टेक अ इक्वल राइट ऑन इट, इक्वल शेयर ऑन इट। अगर कोई 3 पार्ट में चीज़ है, माँ, बेटा और बेटी है, तो तीनों को एक एक पार्ट दिया जाएगा, ना कि लड़के को एक पार्ट दिया जाएगा या टोटल प्रॉपर्टी लड़के को दी जाएगी। ऐसा नहीं होता और ये अच्छा है। एवरीवन डिजर्व इट्स पार्ट।
Do you know the difference of municipal corporation and municipal council? कोई डिफरेंस नहीं होता. बड़ी सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है. कॉरपोरेशन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ different wings, like there is a separate wing for collection of garbage, maintenance of road, garden, electricity. वो सारा ग्रुप अप करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, क्योंकि इन सब का एक टीम की तरह काम करते हैं. हर जगह टीम की तरह काम करते हैं, बट ये दे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स एंड दे आर द बिग डिपार्टमेंट्स फॉर द बिगर एरियाज. और स्मॉलर टाउन्स के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल. बस इतना ही डिफरेंस होता है, दोनों का काम एक ही होता है.
फाइनली यूनिट 4 पे आ गए हैं. Livelihood. We'll go through this today only. Right, I'm taking a break. We'll get back to you. I'm uploading this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you. Take care and take a good breakfast and go back to study again. Tada.